हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिजिक्स फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोस। जहाँ तक कैपेसिटर पढ़ा था उसके बाद हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इन द फिजिक्स इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्लियर? हाउ वी कैन combine the capacitor? There are how many ways to combine the capacitor? So basically there are the three ways of combination of the capacitor. The first one is said to be the series combination, the second one is said to be the parallel combination, and the third one is said to be the mixed combination. But mixed combination is not a general case कि जिसको यहाँ पर derive किया जा सके. It can be solved by learning about the series connection as well as the parallel connection. So on coming to one by one, firstly we are going for the series connection. So this is the series combination of capacitor. And what is series combination? When two capacitors are attached like this. Clear? And basically we are going to study about the parallel plate capacitor because it's in our syllabus. Spherical capacitor and cylindrical capacitors के डेरिवेशन ही हमारे लिए ठीक है, लेकिन उनके इस तरह से कॉम्बिनेशन अपन नहीं करते. करेक्ट? So यहाँ पर क्या ये if we have two capacitors like this, let the name of the capacitors is your C1 and C2. And if they are arranged in this way, then this is called the series combination. So this way arranged इसका कोई मतलब नहीं है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर ये कहलाता है कि सपोज इट इज सेड टू बी द फर्स्ट कैपेसिटर एंड इट इज सेड टू बी द सेकंड कैपेसिटर. क्लियर? सो अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती है, we have seen the basic construction of the capacitor ki a parallel plate capacitor contains two plates in which one is going to be positive charge and another is going to be the negative charge. Clear? When we see the capacitor, each capacitor will contain two plates. Suppose it's your first plate and it is your second plate. So this capacitor where the first plate is always is positive charge and the second plate is always a negative charge. Similarly, for the second capacitor is also contain the two plates. The first plate is this one and the second plate is this one. And again the first plate is positive charge and second plate will become your negative charge. Now I am going to define the definition of the series combination. This is the first capacitor and this is the first plate and second plate of first capacitor, and it is your second capacitor, and 1 and 2 are the first and second plates of the second capacitor. So when the capacitors are said to be in series connection, when the second plate of first capacitor is directly attached to the first plate of second capacitor, then the capacitors are said to be in series combination. Clear? So यहाँ पर क्या इस लॉजिक का यूज करते जाएंगे. If you want, you can apply the another capacitor over here. That is said to be the C3 हो जाएगा आपका ये. तो इसकी first plate, second plate, that is your positive plate, and what is that is your negative plate. So on seeing the definition of series combination, the second plate of first capacitor is directly connected to the first plate of second capacitor. Second plate of second capacitor is directly connected to the first plate of third capacitor. So all these capacitors are said to be in series connection. Done. And what happens when the capacitors are in series connection? Let C1 and C2 are in series connection, and we are applying a battery over here. Let the voltage of the battery is your V. And what is the basic purpose of the battery? The basic purpose of the battery is to supply the charge, to supply the current of the circuit. So here this is the voltage. The voltage of the battery is your V. And when we complete this circuit, the battery supply the charge on the circuit. That Q charge is supplied by the battery. ये जो Q चार्ज होगा इन दोनों कैपेसिटर से होते हुए इसी बैटरी पर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा. बिकॉज हियर बैटरी फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. दैट मींस टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी शुड रिटर्न ऑन द बैटरी. क्लियर? सो यहाँ पर क्या होगा, दिस सर्किट विल बिहेव लाइक अ पाइपलाइन. सपोज ये आपकी एक पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन में एक ही पाइप है. चार्ज इज ट्रीटेड एज द वाटर. कि सपोज आपके पास अगर यही पाइपलाइन है और चार्ज जा रहा है, वाटर जा रहा है, तो जितना वाटर यहाँ से निकलेगा उतना ही वाटर C1 के पास जाएगा, फिर वहां से C2 के पास जाएगा, फिर उतना ही वाटर वापस आ जाएगा. कहने का मतलब when the capacitors are in your series combination, so the first specification is your charge on capacitor will be same. Charge on capacitor will be same. दैट इज क्यू. यहाँ पर क्या रहेगा आपका, सारे कैपेसिटर में चार्ज आपका सेम रहेगा, बट पोटेंशियल ऑन द कैपेसिटर्स विल बी योर डिफरेंट. क्लियर? हियर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन आपने पहले ही पढ़ रखा है क्लास 10 में इन द केस ऑफ रेजिस्टर्स
In the series combination you said current is same and the voltage is different. In the parallel combination you also noted that voltage is same and the current is different. तो यहाँ करंट को आपको रिप्लेस कर देना चार्ज से और वोल्टेज वैसा ही रहेगा. तो I am taking upon that let the voltage across the capacitor C1 is your V1 and the voltage across capacitor of the C2 is your V2. So when you apply this capacitor into a series connection, so it may also be said that total voltage present across the capacitor should be equal to the voltage applied by the battery. It means the second possibility or second main specification of the series combination is your the total applied voltage must be equal to the algebraic sum of the voltage across each and every capacitor. You can apply V is equal to V1 plus V2. डन. अब यहाँ से क्या करना है हमें ये कि जैसे कि आपने पढ़ रखा है क्लास 10th में, आप रजिस्टर को सीरीज में लगाते हो, रजिस्टर को किस में लगाते हो, आप पैरेलल में लगाते हो. फिर आपका ये रहता है कि बेसिकली उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है. तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के कितना आता है, R is equal to R1 plus R2 plus R3. सिमिलरली यहाँ पर क्या है, we have two capacitors और दोनों कैपेसिटर्स को have taken into a series. इनका C equivalent कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं C equivalent किस फॉर्मेट का आता है. ये बात समझ में आ रही है. If we go for the first capacitor, so what is the capacitance of first capacitor, that is your C1, what is the charge Q and what is the potential difference over here is your V1. And you know the formula of capacitance, that is your C is equal to कितना होता है आपका Q upon V. If we apply this formula for the first capacitor, you can write C as C1 and Q as Q2, charge Q ही है, but यहाँ पर V की जगह कितना रखना पड़ेगा आपको, V1 रखना पड़ेगा. From there you can get the value of V1. So V1 is equal to कितना हो जाएगा, Q divided by आ जाएगा आपका ये, that is your C1. Similarly, if you apply this formula for the second capacitor, then you get the value of V2 and the V2 will become your, similarly Q is equal to V2 is equal to कितना आ जाएगा, Q divided by C2 आ जाएगा. Now you have values of the V1 and V2 and you have one equation, that is your V is equal to V1 plus V2. On putting the values of V1 and V2 over here, so you get V is equal to how much, that is your V1 plus कितना है आपका V2 है. तो यहाँ V1 जो कितना लिख सकते हो आप, Q divided by C1 और V2 जो कितना लिख सकते हो आप, Q divided by C2 लिख सकते हो, that is your V. यहाँ से Q क्या आ जाएगा आपका, कॉमन आ जाएगा. So you will get 1 upon C1 plus 1 upon कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा. On dividing V by Q you will get V upon Q, that is your 1 upon C1 plus 1 upon कितना आ जाएगा आपका ये C2 आ जाएगा. And you can write V upon Q as your 1 divided by Q divided by कितना लिख सकते हो आप, V लिख सकते हो, that is your 1 upon C1 plus कितना हो जाएगा, 1 upon C2 आ जाएगा. And you know that Q upon V is how much, that is your C. So ultimately on putting the value of Q upon V over here, you will get the final result which comes after the series connection of the capacitor. So the final result of the capacitor is how much, 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus कितना हो जाएगा आपको, 1 upon C2. ये बात समझ में आ रही है. Rest of the thing I am going to remove from here. So यहाँ पर क्या हो जाएगा आपकी ये, so we have the three basic properties during the series connection. The first property is your charge on each capacitor should be same, and the second is your the voltage across the capacitor should be the algebraic sum of the voltage across capacitor, which should be equal to the voltage of the applied battery. And the third specification of series connection is your 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2. And what is the meaning of this one? The meaning of this one is what? When two capacitors are arranged in series connection, here C1 and C2 are arranged in series connection, then what will happen? ये दोनों कुछ काम कर रहे हैं, हम इन दोनों को हटा दें, एक सिंगल कैपेसिटर रखना है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C. उसी काम के लिए जितना ये कर रहे थे, इसको क्या बोलेंगे, C इक्विवेलेंट. इसका C इन्हीं दोनों के बराबर, क्योंकि अकेला मिलकर वही काम कर रहा है जो ये दोनों कर रहे थे. So you get 1 upon C is equal to how much, 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon कितना हो जाएगा, C3. You can go up to infinite. जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं ये कर सकते हो. आपने रेजिस्टेंसेस का सीरीज पैरेलल पढ़ा है और वहां पर एक चीज मिली थी आपको, जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता तो फॉर्मूला था R is equal to R1 plus R2 plus R3, और जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो फॉर्मूला आता है 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 आता है. लेकिन यहाँ पर जब सीरीज और पैरेलल करते हैं तो जस्ट रिवर्स हो जाता है. जो रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला पोर्शन था वो कैपेसिटर का सीरीज बनता है, और कैपेसिटर का जो सीरीज वाला, जो रेजिस्टेंस का सीरीज वाला पोर्शन R is equal to R1 plus R2, वो शायद कैपेसिटर का आपका वो पैरेलल वाला हो जाए. ये बात समझ में आ रही है. अब एक चीज और ध्यान से देखना है यहाँ पर, क्लियर. जैसे क्या है, कोई कहते हैं कि मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं,
1 2 और यहाँ पर 3। कह रहा C1 की वैल्यू 2 है और C2 की वैल्यू 3 है और C3 की वैल्यू कितनी आती है 4 है। ये तीनों किस में लगे हैं? सीरीज में लगे। कोई पूछे इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा तो आप क्या लगाओगे 1/C = 1/C1 + 1/C2 प्लस कितना कर दोगे 1/C3 कर दोगे। तो आप यहाँ से C1 C2 और C3 की वैल्यूज भी क्या करोगे यहाँ पर ये पुट करोगे। तो जैसे ही वैल्यूज यहाँ पुट करोगे तो 1/C = 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 कितना आएगा 4 आएगा। आप यहाँ से C की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और देखोगे C की वैल्यू जो भी आएगी वो 2 से कम आएगी। ये बात समझ में आ रहा है? आप इसका एलसीएम ले ही लेते हैं, चलो ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। दैट इज योर 30। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से जो अपन ने निकाला वो क्या निकाला कि जो 1/C की वैल्यू जो आ रही है 1/C की वैल्यू आ रही है 13 डिवाइड बाई 12। तो C = 12 डिवाइड बाई 13। आप करोगे ये डेसिमल में आएगा, मतलब कुछ आएगा पॉइंट करके आएगा, यहाँ पर 0.9 करके आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? डन। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस थी अपन के पास एक 2 थी और एक यहाँ पर 3 थी और एक यहाँ पर क्या थी 4। ये बात समझ में आ रही है? इन तीनों को अपन ने सीरीज में लगाया तो इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 0.9। एक चीज ध्यान रखनी है whenever the capacitors are connected in series, clear, whenever the capacitors are connected in series the equivalent capacitance should be less than the capacitance of minimum capacitor। ये बात समझ में भाई? सबसे कम कैपेसिटर किसकी है? C1 और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इससे भी क्या आ रही है आपकी? कम आ रही है। और इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना बिकॉज इट इज द 1 मार्क प्रॉब्लम। Whenever there is a lot of capacitors are arranged in series connection, so उसका C equivalent हमेशा मिनिमम वाले से भी क्या आएगा? कम आएगा। और मिनिमम यहाँ पर कितना है 2 और आंसर कितना 0.9। ये बात समझ में आ रही है? It's all about the series combination of the capacitor. Let's move towards the parallel combination of the capacitor. So what is parallel combination of capacitor? तो अगर आप सीरीज समझ चुके हो तो पैरेलल भी करना आपके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। उसके लिए बस थोड़ा सा क्या करना है यहाँ पर ध्यान देना, कोई ध्यान देना। क्लियर? देखो ध्यान से, सपोज इट इज अ पॉइंट, इसका नाम A दे दिया एंड दिस इज अ पॉइंट, इसका नाम क्या दे दिया B। These are two capacitors arranged like this. This is the first plate of capacitor, second plate of first capacitor. Again it is the first plate of capacitor and second plate of capacitor. And we are providing the positive charge of the capacitor and we are providing the negative charge of capacitor. Again यहाँ पर कौन सा चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं? पॉजिटिव। और यहाँ पर कौन सा चार्ज दे रहे हैं? नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो क्या था, सीरीज में क्या होता था, पहले की सेकंड प्लेट दूसरे के फर्स्ट से लगती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ सबकी पॉजिटिव प्लेट एक सिंगल पॉइंट से और सबकी नेगेटिव प्लेट एक सिंगल पॉइंट से लगी है। ये किस कनेक्शन में चला गया आपका? ये पैरेलल कनेक्शन में चला जा चुका है आपका ये। और अपन ने यहाँ पर क्या लगा दिया? एक बैटरी लगा दिया। बैटरी का वोल्टेज कितना V है? बैटरी का काम क्या है? चार्ज या करंट को सप्लाई करना। तो चार्ज या करंट को सप्लाई करना सपोज इज योर पाइपलाइन, जो कि यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। और चार्ज लाइक वाटर, तो वाटर यहाँ से जाएगा यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड होगा। मतलब अब इस बार आपका चार्ज 2 पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब दोनों कैपेसिटर्स पर चार्ज की वैल्यू सेम नहीं होगी। ये बात समझ में आ रहा है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ये भी जानते हो कि वहाँ पर करंट सेम नहीं होती, वोल्टेज सेम होता है। करंट का मतलब यहाँ पर चार्ज सेम नहीं होगा और कौन सेम होगा? यहाँ पर आपका ये वोल्टेज सेम होगा। तो इसकी स्पेसिफिकेशन है, फर्स्ट स्पेसिफिकेशन है ये कि वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ये क्या होगा यहाँ पर? ये शुड बी सेम। कब? जब ये किसमें लगे होंगे? आपके ये पैरेलल कनेक्शन में होंगे। और इसी डायग्राम में ये सारी चीजें मैं यहाँ पर लिखूंगा। द सेकंड कंडीशन क्या है? 10 लीटर पानी गया, 8 लीटर इधर चला गया, 2 लीटर इधर चला गया। 10 = 8 + 2। इट मींस यू कैन अप्लाई Q = Q1 + Q2 ओवर हियर। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा? Q = कितना हो जाएगा? Q1 + कितना हो जाएगा आपका Q2। एंड सिंस दे आर इन योर पैरेलल कनेक्शन, तो दोनों पर वोल्टेज उतना ही होगा जितना बैटरी का वोल्टेज है। इस कैपेसिटर पर वोल्टेज V हो गया और इस कैपेसिटर पर भी वोल्टेज कितना हो गया? V हो गया। क्लियर? अब यहाँ चार्ज कितना जा रहा है? Q1। कैपेसिटेंस कितनी है? C1। और वोल्टेज कितना आपका? V है। तो आपको पता है यहाँ पर ये थर्ड में डेरिवेशन करते हैं। आप जानते हो C = कितना होता है? Q/V। तो यहाँ से Q = कितना आ जाएगा आपका? ये C भी आप इसकी जगह लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर अगर इसकी जगह देखो, ये तो फर्स्ट कैपेसिटर के रखना हो तो Q की जगह Q1 आएगा, C की जगह C1 आएगा और V की जगह V ही रहेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? Q1 = C1 × V हो जाएगा और Q2 = कितना हो जाएगा? C2 × V हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही थी? फिर Q1 और Q2 की वैल्यूज किस में रख देंगे तो Q = कितना आ जाएगा आपका? ये Q1
प्लस Q2 है तो Q1 जगह कितना रख देंगे यहाँ पर C1 भी और प्लस इसकी जगह कितना रख देंगे C2 भी। V आ जाएगा यहाँ से कब ये बचेगा C1 प्लस C2 दैट इज योर Q और Q अपॉन V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 और Q अपॉन V क्या है कुछ नहीं है कैपेसिटेंस है तो दैट इज योर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। आप देख सकते हो इस Q अपॉन V की वैल्यू कितनी होती है C होती है तो डायरेक्टली से लिखो। यहाँ पर वही सेम फॉर्मूला आ रहा है जो रजिस्टर के सीरीज में आता है वो कैपेसिटर के किस में आ रहा है आपका ये पैरेलल में आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो व्हाट शुड बी put on your mind during the study about the combination of capacitor. So firstly you should know that in the parallel capacitor voltage across each and every capacitor should be equal to how much? Equal to voltage applied by the battery. The second thing, charge on each capacitor should be different because charge यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। And the last and one thing, C equivalent is equal to how much? That is your C1 plus C2. And if you have more than two capacitors, you can provide plus C3 plus C4 plus C5 and so on. Clear? Suppose I have two capacitors like your C1 is equal to 2 and C2 is equal to 4 If both these two are arranged in your parallel connection and somebody asks you about what is the equivalent capacitance of the capacitor, your answer should be C is equal to C1 plus C2. The value of C1 is how much 2 and the value of C2 is how much 4. Now it is coming as your 6. So when we apply capacitors in your parallel combination, then the C value of C equivalent should be more than 4 से ज़्यादा 6 yes should be more than the maximum value of the capacitance। जहाँ पर सीरीज में क्या आया था आपका ये कि जो C equivalent होगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी ये दैट इज योर मिनिमम कैपेसिटर से कम होनी चाहिए और वहीं पर पैरेलल में C equivalent की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम कैपेसिटेंस से क्या होती है आपकी ये ज़्यादा होती है। तो बच्चा ये आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये। तो इस तरीके से इसको क्या करना है थोड़ा अच्छे से रीड करना है। इसकी नोट्स में सेंड करूँगा उस नोट्स को भी क्या करोगे आप अपने पास अप्लाई करोगे। तो अभी थोड़ा सा एक टॉपिक और कवर करते हैं फिर इसके बाद आप क्या करेंगे इसके न्यूमेरिकल को मैं लगवाऊंगा आपसे। Let's see the problem based on the combination of the capacitors. Clear? So I have two problems over here. The first is little bit tricky and the second one is also little bit tricky. If I asked you what is the equivalent capacitor in both of the diagrams? On coming to the second diagram first. Second diagram यहाँ से start होता है here the point A and here is the point B. Clear? अब अगर यहाँ से मैं तुमसे पूछूं कि what is the C equivalent? A और B के बीच में C equivalent कितना होगा? A और B के बीच में C equivalent का मतलब समझ तो हमेशा किन्हीं दो पॉइंट के बीच में ही C equivalent पूछा जाएगा। तो अंडरस्टूड है कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें क्या लगाना है बैटरी लगाना है। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर जब A और B के बीच में पूछेगा ये तो A और B के बीच में क्या लगाना है अपने यहाँ पर ये बैटरी लगाना है। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या लगा देना बैटरी लगा देना वर्चुअल बैटरी दिखनी नहीं चाहिए दिमाग में लगनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। उस बैटरी से चार्ज भी भेज दो। अब बैटरी लगाने में दो प्रॉब्लम ये आएगी सर आपने प्लस बड़ा वाला नीचे बनाया छोटा वाला ऊपर ऊपर बना देंगे तो ये तो कोई दुनिया हमारी चेंज हो जाएगी पूरी कायनात ही पलट जाएगी तो ऐसा नहीं है। ये बात समझ में आ रही है। आप कहीं से क्या कर सकते हो इसको अरेंज कर सकते हो। जैसे तो लॉन्गर टर्मिनल है उसको नीचे दे सकते हो और वाले को कहीं भी कुछ भी ले लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आ रही है। सपोज मैंने इन दो पॉइंट्स के बीच में इस तरीके से बैटरी को क्या किया ऐसे किया। अब बैटरी से चार्ज आएगा मैंने देखा चार्ज गया इधर यहाँ से ऐसे है फिर इस तरीके से चार्ज तो यहाँ से निकल गया सारे कैपेसिटर पर सेम चार्ज गया। सारे कैपेसिटर किस कनेक्शन में है सीरीज कनेक्शन में। ये बात समझ में आ रही है। और अगर सारे कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में है तो C इक्विवेलेंट क्या होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हाउ मच 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस कितना हो जाएगा 1/C5 because here are the 5 capacitors over there. सबकी कैपेसिटेंस कितनी 2 1/C is equal to 1/2 plus 1/2 plus 1/2 and again plus 1/2. The total how much it will become total 5/2. Since it is the value of 1/C equivalent that is your 5/2 तो C equivalent कितना आ जाएगा आपका ये that is your 2 divided by 5 इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.4 farad and farad is the unit of what capacity। ये बात समझ में आ रहा है। So what is the logic? ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम है कुछ नहीं करना। अभी तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स आनी है। तो बेसिक लॉजिक मैंने इसमें क्या यूज़ किया तो बेसिक लॉजिक जो मेरा यूज़ करने का वो ये है कि
कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपसे कैपेसिटेंस पूछेगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक वर्चुअल बैटरी एज्यूम करो और उस बैटरी के थ्रू चार्ज सप्लाई करने की कोशिश करो। एंड व्हेन द चार्ज इज सप्लाइड ऑन द सर्किट, सी अबाउट द supplying of the charge, whether the charge is divided or not divided. And if the charge is not divided in any part, it means all the capacitors are in series connection. And if charge is divided, it means all the capacitors are in your parallel connection. Clear? So I'm coming to the second numerical, first numerical. तो second numerical लिए simple सा, all the capacitors are in your series connection. लेकिन किसी ने ध्यान दिया कि अगर उस डायग्राम के बेसिस पर देखें जिस पर पैरेलल का अपन ने फोकस है तो सबको ले पैरेलल कनेक्शन में, लेकिन नहीं, यहाँ से चार्ज एक एंड से भेजो, देखो सब में सेम चार्ज आ रहा है, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे किस कनेक्शन में, आपका ये सीरीज कनेक्शन। क्लियर? सो यहाँ से क्या करते हैं, इसको अपन ये रिमूव करते हैं। ऑन कमिंग टू द सेकंड फर्स्ट प्रॉब्लम में ए और बी के बीच में ये पूछ रहा है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में क्या लगा देंगे अपन, इस तरीके से बैटरी लगा देंगे इस तरीके से। सपोज इधर से क्या कर रहे हैं अपन, चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है आपका, क्यू चार्ज सप्लाई हो रहा है। ये चार्ज इस पर तो क्यू ही जाएगा, लेकिन यहाँ से दो चार्ज क्या हो जाएंगे आपके, डिवाइड हो जाएंगे। सपोज इधर कौन सा चार्ज गया आपका Q1 और इधर कौन सा चार्ज गया Q2, तो ये जो Q1 चार्ज है इस पर भी कितना जाएगा Q1, मतलब ये Q1 चार्ज इन दोनों पर सेम है, इसका मतलब ये दोनों किस में लगे हुए हैं बच्चा, सीरीज में लगे हुए। ये बात समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इस पर Q2 चार्ज गया, इस पर भी कितना जाएगा, Q2 चार्ज आएगा, इन दोनों पर चार्जेस के आपके सेम है, इट मींस दे अगेन बोथ आर इन योर सीरीज कनेक्शन। ये बात समझ में आ रही है। मतलब ये दोनों कैपेसिटर्स आपस में किस में, सीरीज में, इन दोनों का अलग से इक्विवेलेंट निकालते हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट अलग से निकालते हैं। क्लियर? और सर्किट किस तरीके से यूज करने की कोशिश करते हैं, मतलब अगर अपन इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इन दोनों जगह एक सिंगल कैपेसिटर रखना पड़ेगा, और अगर इन दोनों का निकालेंगे तो इन दोनों की जगह भी एक सिंगल कैपेसिटर रखना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 है, तो कर देते हैं 1/6 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 दैट इज 2। तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/2। ये बात समझ में आ रहा है, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट दैट इज 0.5। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि मैं इन दोनों को हटाकर यहाँ एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकता हूँ, और यहाँ पर इन दोनों को हटाकर मैं एक सिंगल कैपेसिटर यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो जो पहला डायग्राम था वो कैसा भी रहे, दूसरा डायग्राम कुछ आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये एक कैपेसिटर यहाँ पर आ जाएगा आपको 0.5 का, और दूसरा कैपेसिटर भी यहाँ पर आ जाएगा आपको, ये कितना का रहेगा, 0.5 का। और अभी भी इधर चार्ज Q1 और इधर भी कैसा है आपका Q2, क्योंकि जो चार्ज गया था इन दोनों पर डिवाइड हुआ, इसका मतलब ये दोनों किस में लगे हुए हैं आपके, पैरेलल में लगे। ये बात समझ में आ रही है। इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये सी कौन सी प्लेट है पॉजिटिव, ये कौन सी प्लेट है पॉजिटिव, दोनों की पॉजिटिव प्लेट एक सेम पॉइंट से लगी और दोनों की नेगेटिव प्लेट भी एक सेम पॉइंट से लगी, ये दोनों किस में चले गए, पैरेलल में चले गए। और अगर ये पैरेलल में चले गए तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा आपका, एक सिंगल कैपेसिटर, वो कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हाउ मच, C1 प्लस कितना कर दोगे आप, C2 कर दोगे, दैट इज 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 1। मतलब इन दोनों की जगह मैं सिंगल कैपेसिटर लगा सकता हूं, और वो सिंगल कैपेसिटर कितना रहेगा आपका, ये 1 फैराड का कैपेसिटर रहेगा यहाँ पर आपका। ये मैंने इन दोनों जगह क्या लगा दिया है, सिंगल कैपेसिटर लगा दिया 1 फैराड का। अब अगर बैटरी से चार्ज भेजोगे, वही चार्ज इसमें जाएगा, सेम चार्ज इसमें, सेम चार्ज इसमें और सेम चार्ज इसमें, सब में चार्जेस की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर जाएंगे तो फाइनली तीनों सीरीज में, तो एक बार और फॉर्मूला लगाएंगे, 1/6 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, दैट इज योर 3 आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपको, 1/3 फैराड आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो प्रॉब्लम इसलिए These are the basic problems of the combination of capacitor। इनसे बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, इनको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कल ही सेंड करूँगा। ओके, थैंक यू।